Hello students, this is Sandeep sir here from Vijay Tutorial. Admission is open for the academic session 2021-22. Okay, if any one of you are interested to take admissions for online classes as well as offline classes, you can contact me at this number 8050-644-272. So here in this video, I'm going to explain one of the important concepts of coordinate geometry. Okay, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम सीखेंगे, इसका बेसिक्स अभी देखेंगे. We talk about Cartesian coordinate system. Okay, in the Cartesian coordinate system, there is a Cartesian plane which is made up of two number lines. Okay, which are perpendicular to each other. Okay, that is x-axis horizontal and y-axis vertical, which represents the two variables. देखिए ये होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस. ओके, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस इसको बोलते हैं ओरिजिन. सो these two perpendicular lines are called coordinate axis, x-axis and y-axis. The intersection point of these two lines is known as center or the origin of the coordinate plane. Okay, what is the coordinate of such plane? Such point, this is 0, 0. Okay, coordinate of origin is what? 0, 0. Its coordinate is 0, 0. ठीक है. Any point, okay, on this coordinate plane is represented by ordered pair of number. Okay, so let a comma b be a ordered pair. Then a is the x coordinate and b is called as the y coordinate. Okay, I'll explain you. See, the distance of any point from the y axis is called as x coordinate or abscissa, whereas the distance of any pointer from the x-axis is called as y-coordinate or ordinate, also called as mantissa. Okay, so here is a Cartesian plane. You can see here, this is the x-axis, this is the y-axis. Okay, this point is origin 0, 0. To the right of this origin are positive, +1, +2, +3, +4, +5, +6. Left side is negative, -1, -2, -3, -4, -5, -6. Up of this origin is positive, +1, +2, +3, +4, +5. Down of this origin is negative, -1, -2, -3, -4, -5. Yes or no? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड क्वाड्रेंट. एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव. दिस इज कॉल्ड एज थर्ड क्वाड्रेंट. Here x coordinate is negative, y coordinate is also negative. Okay, this is called as fourth quadrant. Here x coordinate is positive, y coordinate is negative. यहाँ पे x coordinate positive है, सॉरी यहाँ पे x coordinate सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, x coordinate negative है. ठीक है, x coordinate is negative and y coordinate is positive. Okay, this side is what, negative. Okay, suppose if they ask you to represent 3, 5, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम x कोऑर्डिनेट में 3 देखेंगे. कहाँ है x कोऑर्डिनेट 3? 1, 2, 3 +3. और y कोऑर्डिनेट में +5. +5 देखिए 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे इधर मूव करेंगे इसके पैरेलल. ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3, 5 हो जाएगा. लेट इट बी पॉइंट A. Okay, we have already seen. Okay, we have already learnt this representation of points in 9th standard CBSE 9th. ठीक है, अभी सपोज हमको रिप्रेजेंट करना बोल रहे हैं -3, 5. हाँ, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट इट बी B. सो -3 हम देखेंगे, दिस वन -1, -2, -3 एंड +5. +5 इज अबव द ओरिजिन. 1, 2, 3, 4, 5 इसके पैरेलल में जाएंगे. ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा क्या? -3, +5. -3, +5. ये सर ना, अगर हमको C पॉइंट है जिसको रिप्रेजेंट करना है -3, -2. -3 किधर जाएंगे? -1, -2, -3.
-2 डाउन आएगा y एक्सिस के, -1 -2 तो इसके पैरेलल में आ जाएंगे। ये पॉइंट क्या हो गया -3, -2, ठीक है। अगर पॉइंट डी है रिप्रेजेंट करना 4, -2 तो कैसे देखेंगे, इधर ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे, +1 +2 +3 +4 ये, और -2 डाउन आएगा, -1 -2, ठीक है। यहाँ देखिए -1 -2 इसके पैरेलल आएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा डी, दैट इज 4, -2। ओके, फिर हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का। ओके, वी टॉक अबाउट डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इट इज द फार्मूला ओके व्हिच गिव्स अ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। Okay, the distance between any 2 points A and B is there having coordinate x1 y1 and B is having coordinate x2 y2 is calculated by okay distance D is equal to square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. This is very important formula. Okay, so with the help of this formula we will get the distance. Okay, so how can you find out this distance formula? You see here, let this point is A having coordinate x1, y1, okay, and B point है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। अभी देखिए ये डिस्टेंस ये x1 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x2, y2 है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा x2 हो जाएगा। एक का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, x एक्सिस पे, और पॉइंट B से रेटेड बी M और A से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि मीट कर रहा है यहाँ पे x2 पे, यहाँ पे मीट कर रहा है x1 पे, ठीक है। ये आपका है n मान लीजिए आप, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया O to n, क्या हो इट इज x1 तो ये हो जाएगा x1 हो जाएगा। अभी देखिए ये डिस्टेंस x2 है, ये इसके पैरेलल है O x2, ये हमारा क्या हो जाएगा OM क्या हो जाएगा ON हो जाएगा x1 हो जाएगा, और OM क्या हो जाएगा OM डिस्टेंस ये हो जाएगा x2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट y1 है तो AN क्या हो जाएगा AN हो जाएगा y1 हो जाएगा ये डिस्टेंस, ठीक है। और BM क्या हो जाएगा BM डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा y2 है ना, ये डिस्टेंस y2 हो जाएगा। अभी आप देखिए दिस इज y1 एंड यहाँ से यहाँ तक y2 है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। अभी इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए O ले लीजिए आप, और ले लीजिए P ले लीजिए आप उसको, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी पी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो क्या लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। अभी आप देखेंगे ए ओ क्या है, ए ओ इज नथिंग बट x2 माइनस x1, ठीक है। और हमारा बी ओ क्या है, सॉरी ये बीपी ले लीजिए आप, पी है ना ये पॉइंट, ये पी पॉइंट है तो एपी है x2 माइनस x1 और बीपी क्या हो जाएगा ये बीपी पॉइंट हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। तो यहाँ पे इन द ट्रायंगल ए बी पी हम क्या लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, राइट। तो ए बी स्क्वायर इज नथिंग बट डी स्क्वायर, एपी को हम डी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी, बीपी क्या है हमारा है y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस एपी क्या है एपी इज x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो डी हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस देखिए, एग्जांपल है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट D एंड E, D और E के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। D का कोऑर्डिनेट है 3, 4 और E का कोऑर्डिनेट है -2, -5, तो हम D लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या हो जाएगा ये होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, राइट। आप किसी को भी x1 और x2 मान सकते हैं, ठीक है, x1 y1 x2 y2, जैसे आपको इसको मान लेते हैं हम x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x1 y1 हो जाएगा, ठीक है। अब पुट कर देंगे फॉर्मूला में y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारा -5, ठीक है, तो -5 माइनस y1 क्या है y1 है 4, -4 होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है x2 हमारा है -2, -2 माइनस x1 क्या है हमारा 3 है,
इसका स्क्वायर, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, -5 -4 ये -9 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस -2 -3 -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 1 6 8 + 2 10 स्क्वायर रूट ऑफ 106, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा 10.3, ठीक है। इस तरह से हम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ओके। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कैसे निकालेंगे देखते हैं। If we have to find the distance of any point from the origin, then one point is P x comma y, another point is origin, okay, which is a O 0,0. So according to the above distance formula, what we can find, ये क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है हमारा P x और y है, और दूसरा पॉइंट ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो अगर हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 को इसको आप x2 y2 मान लो, इसको आप x1 y1 मान लो, तो क्या लिख सकते हैं, x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर। y2 क्या है, y है, y1 क्या है, 0 है, y - 0 होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा स्क्वायर ना OP। और चूंकि हमारा पॉइंट हम मान रहे थे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये डिस्टेंस, ठीक है। OP क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अबाउट डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला का। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इफ पॉइंट P x, y is any point on the line segment AB which divides AB in the ratio m:n, then coordinates of the point P x, y will be, समझिए यहाँ पे हमारा पे यहाँ पे दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, A दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, पॉइंट P है हमारा, ठीक है, जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n। मतलब कि क्या है, AP बाई PB ये दिया हुआ हमारा, दिस रेशियो दिया हुआ है m/n दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, अगर हम मान ले रहे हैं x y है, तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है m इंटू ये रेशियो, ओके, इंटू इसका कोऑर्डिनेट x2 प्लस दिस पार्ट n इंटू दिस कोऑर्डिनेट n x1 अपॉन सम ऑफ रेशियो m प्लस n। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉइंट P का, ये हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अगर ये P मिड पॉइंट रहा, ठीक है, तो P इज द मिड पॉइंट, तो रेशियो क्या हो जाएगा, ओके, ये डिस्टेंस AP = PB हो जाएगा, ओके। P इज द मिड पॉइंट, ओके, व्हिच डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:1, क्योंकि अगर ये पॉइंट P मिड पॉइंट है, ये A है, ये B है, ठीक है, तो ये AP विल बी इक्वल टू व्हाट, PB। तो हम क्या लिख सकते हैं, AP/PB क्या रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम अगर हम लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में, तो x = क्या हो जाएगा, m हो गया 1 हो गया, n भी 1 हो गया, तो 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1 + 1, तो क्या हो जाएगा, ये x2 प्लस x1/2 हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y कोऑर्डिनेट = m × y2 मींस 1 × y2 प्लस n × y1 मींस 1 × y1 अपॉन m + n मींस 1 + 1। ये हो जाएगा क्या, y2 प्लस y1/2। इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो देखिए लिखा हुआ है x कोऑर्डिनेट = x2 प्लस x1/2, y कोऑर्डिनेट = y2 प्लस y1/2, ठीक है। और ये इस बार सेशन में 2021 का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, SSLC में, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, सी, अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है A, B और C, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए यहाँ पे, here ABC is a triangle with vertices A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3. To find the area of a triangle, we need to draw, okay, AP BQ, okay,
AP, BQ and CR perpendicular from A, B and C respectively, okay, to the x axis. यहाँ देखिए A से P एक perpendicular ड्रॉ किया गया है, B से Q एक perpendicular ड्रॉ किया गया है, C to CR एक perpendicular ड्रॉ किया गया है x axis पे, ठीक है. Now we can see that ABQP, okay, ABQP, APRC, APRC and BQRC, ठीक है, BQRC, ये तीनों क्या है, ट्रेपेजियम्स है, ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABQP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APRC, ओके. अगर हम ABQP और APRC का एरिया ऐड कर करके अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRC सब्ट्रैक्ट कर देंगे, BQRC सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, ठीक है. ये बड़ा वाला एरिया जो है, सेकेंड फिर से देखिए, ये बड़ा है ना, ये जो हमारा बड़ा एरिया है, ये पूरे का एरिया जो है, उसमें से अगर हम पूरे का एरिया कैसे आएगा, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, ये पूरे का एरिया देगा, ठीक है. उसमें से अगर हम ये एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, फिर से देखिए हम यूज कर रहे हैं, एक ये ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है, और दूसरा ये ट्रेपेजियम हो गया, मैं रेड कलर यूज कर ले रहा हूँ, ये ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है. ये दोनों का एरिया में से अगर हम ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला, ये ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है, तो ये क्या हो देगा हमको, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल देगा, ठीक है. अब देखिए हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड से इनटू डिस्टेंस इन देम. यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइपेजियम आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हाफ इंटू x1 होल इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 होल इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 होल इंटू y1 माइनस y2. एक मैट्रिक बता रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, आप ऐसे लिखिए, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, ठीक है. एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको याद रखना है ना, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू मॉडुलस, मॉडुलस लिखेंगे, यहाँ पे 1 है ना, तो x1 पहले लिखिए, x1 होल इंटू दिस माइनस दिस कर दीजिए, y2 माइनस y3 कर दीजिए, प्लस क्या लिखेंगे, x2 लीजिए आप नेक्स्ट टाइम, उसको लीजिए, तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस इसको लेंगे x3, तो क्या हो जाएगा, होल इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा, y1 माइनस y2, ठीक है. ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है. इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 0 देन द गिवन 3 पॉइंट्स मस्ट बी कोलिनियर. ये देखिए अगर 3 पॉइंट्स है, they will ask questions, prove that the area and points A, B, C are collinear, okay, so you have to find the area. एरिया निकालिए, अगर ये तीनों पॉइंट से जो एरिया आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मतलब क्या है, दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब होता है कि these are 3 points lie on a same lines, okay, ठीक है. हम डिस्टेंस फॉर्मूला का अप्लाई कर करके निकाल सकते हैं. दे में आस्क यू to prove that this is a isosceles triangle, this is a rhombus, this is a square, ठीक है. ये देखिए पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. In a coordinate geometry, polygons are formed by x and y coordinates of its vertices. So in order to prove that the given figure, ठीक है, अगर आपको 4 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, आपको अगर 4 पॉइंट दिया हुआ है A, B, C और D, ठीक है, ये 4 पॉइंट दिया हुआ है. They may ask you to prove that it is a square, prove that it is a square. क्या करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 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 और डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, ठीक है. इफ ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, इट मींस इट इज ए स्क्वायर. रोम्बस के लिए क्या करेंगे, इफ 4 साइड्स आर इक्वल दैट इज एनफ, ओके. रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर, 4 साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ओके, है ना. रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. ये प्रॉपर्टी देखिए आप, ठीक है, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स आल्सो इक्वल होते हैं,
ओके। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है। उसी तरह अगर हमारा 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इफ दे हैव गिवन 3 पॉइंट्स, ओके, दे मे आस्क यू प्रूव दैट दिस इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज ए पाइथागोरस, दिस इज ए स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, इफ नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, हम डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। अगर तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, स्केलेन ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ओके। फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, if any two sides are equal, for equilateral triangle, if it's all sides are equal, right angle triangle, okay, right triangle, if the sum of a square of any two sides is equal to the square of third sides, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये राइट है ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये मैं कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सम्स देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर ही शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।